बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 कराया था, क्वेश्चन नंबर 17 कराया था और डिफरेंशियल कैलकुलस के 5-6 फार्मूले आपको दिखाई थी। पहले तो देखें भाई क्वेश्चन नंबर 23। सी क्वेश्चन नंबर 23, an important question. A line whose y-intercept is 1 less than its x-intercept. Y-intercept यानी b, it is 1 less than its x-intercept. b की वैल्यू 1 कम है, इसका मतलब b में अगर हम 1 ऐड कर दें तो इट इज इक्वल टू a, यानी आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b प्लस 1। y-intercept is 1 less, y-intercept 1 कम है x इंटरसेप्ट से, तो इसका मतलब आप इसमें 1 ऐड करें तो ये x इंटरसेप्ट के बराबर हो जाएगा। Form with the coordinate axes a triangle of area 6 square unit. Find its equation. तो स्ट्रेट लाइन जिसका y इंटरसेप्ट 1 लेस था x इंटरसेप्ट से, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही है। उस ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है। अब ट्रायंगल कौन सी बन रही है? ये ट्रायंगल बन रही है इस ट्रायंगल का एरिया आपको 6 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है। तो अगर मैं इस वर्टेक्स को O कह दूँ, इस वर्टेक्स को A कह दूँ, इस वर्टेक्स को B कह दूँ, इसका मतलब यू आर गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। Area of triangle 6 square, area of triangle OAB is 6 square units. Find its equation. तो अब चूंकि ये है x इंटरसेप्ट which is denoted by A, ये है y इंटरसेप्ट which is denoted by B। इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 होंगे। A के कोऑर्डिनेट चूंकि x कंपोनेंट A है तो A 0, B के कोऑर्डिनेट्स चूंकि y कंपोनेंट B है तो 0, B। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is equal to 6 because area of triangle OAB is equal to 6 square units. So generally area of triangle it is equal to half into determinant of order 2 by 2, x2 minus x1, y2 minus y1, x3 minus x1, y3 minus y1. It is equal to 6 square units. Values put कर दें, half of determinant of a minus 0, 0 minus 0, 0 minus 0, b minus 0. It is equal to 6. ये हो जाएगा half of determinant of determinant of a minus 0 is a, 0 minus 0 is 0, 0, and b minus 0 is b. It is equal to 6. Now it is equal to half of a into b minus 0 into 0. It is equal to 6. So half of AB it is equal to 6. 2 को शिफ्ट कर दे राइट साइड पे, so it is equal to 12.
और बी के फॉर्म में आपके पास दो इक्वेशंस हैं। एक ये इक्वेशन है, इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। एक ये इक्वेशन है, इसे आप इक्वेशन 2 कह दें। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप x की a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, put the value of a in equation number 2, which is b plus 1 into d is equal to 12. It becomes b squared plus b minus 12 is equal to 0. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। b squared plus 4b minus 3b minus 12 is equal to 0. It is b can be taken common, you left b plus 4. Minus 3 can be taken common, you left b plus 4. b plus 4 is again common. b plus 4 common लें तो बाकी बच गया b minus 3. Either b plus 4 is equal to 0, either b plus 4 is equal to 0. इसका मतलब b की वैल्यू हो गई -4, ये एक वैल्यू हो गई b की, और b minus 3 is equal to 0, इसका मतलब b की वैल्यू हो गई दूसरी 3। b की ये दोनों वैल्यूज आप इस्तेमाल करें a की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, because a is equal to b plus 1 from equation 1, when b is equal to -4, when b is equal to -4, so a become -4 plus 1, it is equal to -3. Again, a is equal to b plus 1, when b is equal to second value, b की second value थी 3, so a become 3 plus 1, it is equal to 4. इसका मतलब दो केसेस आ गए। केस नंबर 1, when a is equal to -3, b is equal to -4. a की वैल्यू -3, when b is equal to -4. आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करें। You know that to intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. X divided by -3 plus y divided by -4 is equal to 1. Minus x upon 3 minus y upon 4 is equal to 1. 12 is the LCM. 12 upon 3 is 4. मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 12 upon 4 is 3. 3 into y is 3y. It is equal to 1. Minus 4x minus 3y is equal to 12. 12 को भी शिफ्ट कर दें, 12 को भी शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा minus 4x minus 3y minus 12 minus 4x minus 3y minus 12 is equal to 0. माइनस 1 कॉमन लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. 4x प्लस 3y प्लस 12 is equal to 0 upon -1, it is 0. ये फर्स्ट पॉसिबल रिजल्ट आ गया। Now come to case number 2. Case number 2, when a is equal to 4 and b is equal to 3.
again equation is x upon a plus y upon b is equal to what? X upon 4 plus y upon 3 is equal to what? So 12 is the LCM. 12 LCM हो गया तो 12 upon 4 it is 3 into x plus 12 upon 3 is 4 into y is equal to what? 12 को शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा 3x plus 4y is equal to 12. It is equal to 3x plus 4y minus 12 is equal to 0. इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि उसका x इंटरसेप्ट उसका y इंटरसेप्ट 1 लेस था x इंटरसेप्ट से और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही थी जिसका एरिया गिवन था 6 स्क्वायर यूनिट, वो लाइन ये हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है। इसका मतलब ये दोनों ही रिलेशंस, ये दोनों ही रिजल्ट्स सही हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 Question number 16, show that area of parallelogram formed by the straight lines L1, it is equal to y is equal to mx plus a, L2, y is equal to mx plus b, L3, y is equal to nx plus c, L4, it is y is equal to nx plus b. आपसे कहा गया शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइंस L1, L2 and L3 is area of parallelogram formed by L1, L2 and L3. It is equal to A minus B multiplied by C minus B divided by M minus N। ये आपको प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए आपको गौर करें कि ये जो 4 साइड्स दे रखी हैं इनमें क्या खास बात है। खास बात ये है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का स्लोप m है, यानी सेम है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों का स्लोप आपको सेम नजर आ रहा होगा m, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो अंधाधुंध फिगर नहीं बनाएंगे, बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस पैरेललोग्राम में L1 और L2 का चूंकि स्लोप सेम दे रखा है, लिहाजा ये पैरेलल लाइंस होंगी। L3, L4 का स्लोप सेम दे रखा है, लिहाजा ये भी पैरेलल लाइंस होंगी। अगर हम फिगर बनाएं L1, L2, these are parallel lines। अगर मैं इसे L1 कह दूं तो ये L2 हो सकता है। इसी तरह L3 and L4 are parallel। अगर हम इसे L3 कह दें तो ये L4 हो सकता है। आपको 4 साइड्स दे रखी थी। जो खास बात थी इन चारों साइड्स की, क्या खास बात थी कि
L1 L2 का स्लोप इक्वल था, इसका मतलब ये पैरेलल है। L3 L4 का स्लोप इक्वल था, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपने L1 L2 को पैरेलल शो किया और L3 L4 को भी पैरेलल शो किया। अब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होगी वर्टिसेस की। तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वर्टिसेस फाइंड करें। L1 L3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपको इनका इंटरसेक्शन P1 मिलेगा। फिर L2 L3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इनका इंटरसेक्शन P2 मिलेगा। फिर L2 L4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो इनका इंटरसेक्शन मिलेगा P8। फिर L1 L4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपको इनका इंटरसेक्शन मिलेगा P4। अब एक पॉइंट तो मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ, बाकी पॉइंट्स आप फाइंड कर लीजिएगा बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि P1 L1 और L3 का इंटरसेक्शन है तो सॉल्व L1 and L3 simultaneously. So L1 is y is equal to mx plus a and L3 is y is equal to nx plus c. If we subtract any one equation from another, plus y minus y ये तो हो गया कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा 0 is equal to mx minus nx plus a minus c. तो अब x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a माइनस सी को शिफ्ट कर दें ये हो जाएगा c माइनस a इज इक्वल टू mx माइनस nx। x कॉमन लें, यू लेफ्ट m माइनस n, यानी x मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n इट इज इक्वल टू c माइनस a। इसका मतलब x इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन m माइनस n। ये x की वैल्यू या तो L1 में पुट करके y फाइंड कर लें या फिर L2 में पुट करके y फाइंड कर लें। If we consider L1, L1 is y is equal to mx plus a, y is equal to m multiplied by x is equal to c minus a upon m minus n plus a. Y is equal to m minus n is the LCM. M minus n cancel, you left m multiplied by c minus a plus a multiplied by m minus n. इसका मतलब y हो गया c इंटू एम माइनस a इंटू एम प्लस a इंटू एम माइनस a इंटू एम डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब अगर आप गौर करें तो प्लस ए एम और माइनस ए एम ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा y इज इक्वल टू सी एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाय m माइनस n। आपको x की वैल्यू भी मालूम, आपको y की वैल्यू भी मालूम, इसका मतलब आपको P1 के कोऑर्डिनेट्स मालूम होगा। P1 के कोऑर्डिनेट्स P1 is x comma y, x की वैल्यू थी c माइनस a अपॉन m माइनस n, y की वैल्यू c m माइनस a m। डिवाइडेड बाय m माइनस n।
अब P1 यानी इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3 ये आपको मालूम। अब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें L3 और L2 को, आपको P2 मिलेगा। फिर आप सॉल्व करें L3 सॉल्व करें L2 और L4, तो आपको मिल जाएगा P3। इसी तरह आप सॉल्व करें L1 और L4, तो आपको मिल जाएगा P4। जिस तरह से P1 आपने फाइंड किया है, बिल्कुल वैसे ही P2, P3 और P4 फाइंड करेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि वर्टिसेस मालूम होगा, कोई भी फोर साइडेड क्लोज फिगर है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम it is x1 half of determinant of order 2 by 2, x1 minus x3, y1 minus y3, x2 minus x4, y2 minus y4। जाहिर सी बात है सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टाइम लेगा। आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो आपको प्रूव करना है। a minus b into c minus d divided by n minus n, आप लिख देंगे इट इज प्रूव्ड। ये बराए मेहरबानी ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये तो है पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल हो या कोई भी ज्योमेट्री हो, फोर साइडेड क्लोज फिगर अगर उसके वर्टिसेस आपको मालूम हैं तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इम्तहान में ये लॉन्ग क्वेश्चन में यानी 8 नंबर का पूछा जा चुका है। लिहाजा ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट करें तो फिर इसका थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड भी आपको बता दें। अभी अगर शॉर्ट आप इस तरह से करेंगे, अब आइए फॉर्मूले। मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था एक, तो एक्स पावर एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पावर एन। वो आपको यकीनन याद होंगे। अब उसके बाद के फॉर्मूले देख लीजिए। तो जिन्होंने अभी तक फार्मूलों को बेटा लिफ्ट नहीं कराई, तो ये फार्मूले बड़ी जल्दी मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद सिर्फ मजाक बन जाता है, वो याद नहीं होते। तो अपने हाल पे थोड़ा सा रहम कीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला, इट इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो टू फंक्शंस के प्रोडक्ट को आप f1x इंटू f2x भी कह सकते हैं। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप fx इंटू gh भी कह सकते हैं। आप ux इंटू वी एक्स भी कह सकते हैं।
आप खाली u इंटू वी भी कह सकते हैं, लेकिन हमें ये सब लिखने से ज़्यादा बेहतर लगता है कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को यूं लिखें, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। आप इसे पढ़ेंगे भी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। ये फार्मूला कब आपके दिमाग में आएगा, जब शक्ल ऐसी हो कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। मिसाल के तौर पे 2x माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस फाइव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रीवियस रूल्स में से तो कोई रूल आपके दिमाग में नहीं आएगा, फिर ये फॉर्मूला होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो रिजल्ट इज फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन into derivative of first function. The derivative of product of two functions, it is first function into derivative of second plus second function into derivative of first function. Next one is derivative of product of three functions. अगर तीन functions multiply हो रहे हैं, first function into second function into third function, it is equal to first function second function as it is multiplied by derivative of the third function plus first function into third function as it is into derivative of the second function plus second function into third function multiplied by derivative of the first function. फिर सुन लें, derivative of first function into second function, it is equal to first function into derivative of the second function plus second function into derivative of first function. The next one is derivative of first function into second function into third function. For example, you are given 2x plus 5 into 3x minus 4 into 7x plus 9. अब ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस है, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने का। प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस के लिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज multiplied by derivative of the third function plus first function third function as it is into derivative of second function plus second function into third function as it is into derivative of first function. इसके बाद है derivative of first function upon second function, यानी अगर फर्स्ट करें लिखा हुआ है 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 3x माइनस फोर, तो अब ना तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आएगा ये, ना ही ये प्रोडक्ट फॉर्मूला आएगा, आपके दिमाग में ये डिवीजन फॉर्मूला आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। तो ये बेसिकली यूं है f1x डिवाइडेड बाई f2x या ux अपॉन vx या fx अपॉन gx या u अपॉन v। तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसे सिंपल फ्रैक्शन लिखा जाए, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, इट इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन multiplied by derivative of the first function minus first function multiplied by derivative of the second function whole divided by square of the second function। फिर सुन लें, derivative of first function upon second function, it is equal to second function into derivative of first minus first function into derivative of second whole divided by square of the second function। Next one is derivative of e raised to the power x, where e is a constant number
in between 2 and 3, it is approximately 2.718. Derivative of e raised to the power x. It is same as e raised to the power x. यानी e raised to the power x ये डिलीट फंक्शन है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, ये e raised to the power x ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उम्मीद है कि ये फार्मूला तो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें अपनापन नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आप जैसे। ये है कि इसके ऊपर ना तो किसी नसीहत का कोई असर होता है, न डांट का असर होता है, न प्यार का असर होता है। अब इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, अगर x की जगह पे कुछ और दे रखा, e raised to the power function of x, तो फार्मूला नंबर 1 और 6, 1 सिंपल फॉर्म थी, 6 मॉडिफाइड फॉर्म थी। फर्क यही था कि x की जगह पे अगर कोई फंक्शन दे रखा है, तो अगर e पावर x है तो इसका डेरिवेटिव e पावर x ही होगा, लेकिन e पावर 2x माइनस 3 है तो इट इज़ नॉट x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई और फंक्शन दे रखा है पावर की जगह पे, तो फिर e पावर x का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फिर क्या यूज होगा? फिर होगा डेरिवेटिव ऑफ e पावर फंक्शन, इट इज सेम e रेज टू द पावर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब एक और कहानी सुन लें पहले। कहानी ये है कि लॉग, आपने बचपन में पढ़ा है, लॉग विद बेस 10। अगर लॉग विद बेस e हो, इस लॉग को तो आप पढ़ चुके हैं, जिसका टेबल भी यूज कर चुके हैं। ये होता था कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, अगर लॉग विद बेस ई है तो इसे कहा जाता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, एंड नेचुरल लॉग इज डिनोटेड बाय एल एन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में नेचुरल लॉग यूज होगा, विच मीन्स लॉग विद बेस ई, और इसे यूजुअली आप एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, जो कॉमन लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज भी वही रहेंगी। यानी लॉग ऑफ ए इंटू बी ये होता था लॉग ए प्लस लॉग बी, एल एन ए इंटू बी ये भी एल एन ए प्लस एल एन बी ही होगा। अब अगर फर्ज करें ए ई के बजाय कोई और कांस्टेंट दे रखा है, मिसाल के तौर पे 5 या 6 या 7, कोई भी नंबर एक्सेप्ट ई, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाता है। इट्स डेरिवेटिव इज a raised to the power x into ln a। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म, अगर x की जगह पे कोई फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव ऑफ a raised to the power फंक्शन ऑफ x, तो फिर ये होगा a raised to the power फंक्शन ऑफ x into ln a into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यानी इसकी मॉडिफाइड फॉर्म ये फार्मूला हो गया, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म ये फार्मूला हो गया, और इसी तरह 1 की मॉडिफाइड फॉर्म फार्मूला नंबर 6 था। फर्क क्या था? सब में एक जैसा है कि x की जगह पे फंक्शन ऑफ x।
उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ ln x. It is equal to 1 upon x. Next one is the modified form of this formula. Derivative of ln of x के बजाय derivative of ln function of x. It is equal to 1 upon function of x into derivative of function of x. तो ये लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा। इन्हें बार बार मैंने पढ़ के आपको बताया है ताकि पढ़ना भी आए। ये सारे फॉर्मूले एक साथ याद नहीं हो सकते। ये आप अपने हाल पे बेटा रहने दीजिएगा। वो 6 याद कर लिए हैं, ये मेरे ख्याल में 9 फॉर्मूले हो गए। तो आप 2-3 आज याद कर लें, 2-3 कल याद कर लें, 2-3 परसों याद कर लें, बार बार लिखें, एक दूसरे को सुनाएं। ये इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको अगर